हेलो एवरीवन, नमस्ते, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? वेलकम इन द अल्टीमेट सेशन। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस अल्टीमेट सेशन में पहला मैच जो कि राजस्थान वर्सेस चेन्नई क्विक खेला गया था, जिसमें चेन्नई क्विक बहुत ही खतरनाक मैच खेले। हेलो चेन्नई क्विक ऑफिशियल पेज, नमस्ते, हाउ आर यू? योर टीम प्लेड टुडे वेरी नाइस एंड दे डिफीटेड राजस्थान by very huge margin, and still your team is doing really very good, and today your defense, your chase really performed very well, and especially our Ramji Kashyap, he was the one of the best player of this ultimate session। और अभी हम थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सर फ्रॉम यूके एज वेल एज अनदर राहुल सर फ्रॉम इंडिया। he is the founder of the cocoskis.com। Chennai Quickens, yes. Chennai Quickens admin, if possible, please join with us if possible. Yes, Ramji Kashyap he's going to be one of the biggest thing of the Coco, as I have already told you. Yes. Welcome, Rahul sir. Both of you, Rahul sir, welcome. हेलो गुरु, क्या हाल चाल? नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार गुरु। Good evening, Prince. How are you? All good? I'm sir. How are you, sir? हमारे नए गेस्ट की थोड़ी पहचान कराइए। Yes, sir. नमस्कार सर, नमस्कार। हमारा नाम राहुल है, वहाँ भी जानते हैं लोग हमारे में इस नाम से। बाकी हम भी प्रिंस सर के जैसे हम भी प्रमोट करते हैं खो को। ग्रुप है हमारा, वेबसाइट है, और अभी इंस्टाग्राम हम लोग रिसेंटली ज्वाइन किए, और यूट्यूब भी प्रमोट कर रहे हैं प्रिंस सर हमारे साथ। तो सब साथ में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग है। एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी है, और आपसे आज मिले अच्छा लग रहा है। Same here. First of all, I would like to say, thanks to you people that you people have spread Coco digitally across the world, and which is one of the important thing right now, that we have to spread this Coco across the world. I'm from right now I'm in United Kingdom, so I'm also looking out for that impact here. The people are going online, they are just searching a lot of information about Coco on websites, Google. They are going through a lot of online streams, Instagram, Facebook, YouTube. So I think this credit goes to you guys, that you guys have done a fabulous job, and Yes. that is appreciable from my side. And keep doing. Any support from our side, we will definitely there to help you out. Yes, sir. We थैंक यू are वेरी मच सर। too much passionate about Coco. As a player, you have done excellent, and now as a promoter and the experience analysis, you have started a new career as well. It's our duty. If you're a player, you have a different phases in your life. Sometime you're a player, sometime you're a coach to be, sometime you everyone having a different segments to contribute for your particular the favorite uh, job, you can say, a game, you can say, you have to choose that where you have to place yourself. It's not like everyone can go and play ultimate Coco. Everyone can't be a Sachin Tendulkar or Virat Kohli, right? हाँ, So exactly. So So that we would like to start today's analysis. We would like to start from our chief guest, who is the new here. So Rahul sir, so प्लीज बताइए कि आपको ये मैच कैसा लगा, राजस्थान और जो चेन्नई के बीच खेला गया था, और आप उसमें कमेंट्री भी कर रहे थे, तो आप तो बहुत इंजॉय किए होंगे उस मैच को। yes. No, you're asking for a Rahul from India or Rahul from UK. That is the difference. आई एम आस्किंग फ्रॉम राहुल इंडिया। अच्छा। यस। जैसे कमेंट्री तो मैं नहीं करता हूँ, लाइक थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ बोलता रहता हूँ, यूट्यूब पे वो रीस्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। बहुत मैच मैंने मिस कर दिया था, लेकिन ऑफिस में था मैं, लेकिन मैं फॉलो कर रहा था स्ट्रीम को। तो उसमें उड़ीसा ने जो सॉरी चेन्नई ने जो शुरुआती परफॉर्मेंस जो दिखाया, खास करके रामजी के बारे में बताया आपने, लाइक Yes, sir. ड्रीमर्स तो आ ही रहे थे, प्लस उनका जो अग्रेसिव जो पॉइंट था, जहाँ पे उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि थोड़ी देर के लिए भी राजस्थान संभल सके। एक होता है कि एक लंबा पॉइंट रखते हो आप, ताकि सामने वाले को एक झटका लगता है, वो झटका मिसिंग था बहुत मैच में।
और चेन्नई को ऑलरेडी हम लोग देखते आ रहे हैं, वो मैच हारी भी है तो बहुत कम पॉइंट के डिफरेंस से हारी है। तो ये पिछला एक्सपेक्टेड था कि चेन्नई अगेन, हाँ चेन्नई अगेन एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो मिला जुला के बहुत अच्छा मैच था और 21 पॉइंट से हराई है मैच को। तो एक बहुत बड़ा गैप से हराया है राजस्थान को। और राजस्थान अभी तक कोई मैच जीती नहीं है, तो उनका मोरल ऑलरेडी कम था और जो कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी उनका ब्रोकन है, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस है। बट yes, अगेन अभी जो मैचेस बचे हुए हैं राजस्थान के, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक मैच राजस्थान जीते इस टूर्नामेंट में। और एक कंसलेशन में होता है कि हाँ जीत कर एक अच्छे मूड से वो वापस वापस जाए घर। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि राजस्थान एक लास्ट मैच दिखाएगी जीतने वाली पारी। यस यस। और आप राहुल सर यूके से, आप बताइए आपने कैसा इसको एनालाइज किया? राहुल जी, आप आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट सेशन विद अस। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी आप देखिए, आपके फेसबुक पे आप प्रमोट कीजिए। हमने वहाँ पे बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल। एनालिसिस जो पर्टिकुलरली लाइक जो मैचेस है, एवरी मैच वी ट्राई टू एनालाइज प्रॉपरली एंड व्हाट आर द लूप होल्स, और उसे कैसे कंप्लीट किया जाए और कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, उसके बारे में हमने बहुत सारी टिप्स, इवन खो खो के बारे में बहुत सारी टिप्स, जो अल्टीमेट खो खो का सेटअप है, जिस फॉर्मेट में वो खेला जा रहा है उसमें क्या लूप होल्स हो सकते हैं, उसे कैसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, हम लोग ने बहुत कुछ बताया। तो आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट कि आप वहाँ पे थोड़ा सा लाइक आपके टीम से बात करके आप बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। एक बारी उसको भी प्रमोट कीजिए, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली अबाउट चेन्नई। देखिए, मैंने कल के क्लोजर कमेंट्स में भी यही कहा था कि अगर आपको चेन्नई को हराना है तो पर्टिकुलरली राजस्थान को पहले अटैक पे ध्यान ही नहीं देना है, बिकॉज उनका पहला अटैक स्मूथ होता है। बाय डिफॉल्ट दे हैविंग टू थ्री गुड लाइक द अटैकर्स। फॉर एग्जांपल मजर जी है वहां पे, ऋषिकेश जी है वहां पे, गनफुले जी है वहां पे। और ये जो प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ मैं, ये अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं। आई थिंक इनमें से मजर जी हमारे साथ खेले हैं, लास्ट प्लेयर। बाकी के दो जूनियर है। मजर जी के साथ, मजर जी भी वो टाइम पे जूनियर ही थे जब वी वर प्लेइंग। तो ये जो प्लेयर्स है, इनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो टीम को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप ऊपर की चेन्नई की टीम देखो, तो चेन्नई की टीम में रामजी, आप रामजी को देखिए, अमित जी को देखिए, महेश शिंदे जी को देखिए। ये तीन प्लेयर्स ने एग्जैक्टली ये तीन प्लेयर्स ने अपनी अपने जो रोल्स है, जो अपने टीम के रोल्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए है ऑलरेडी। राम जी यस का यस तो एज आई टोल्ड यू, राम जी को हम लोग ने नाम दे दिया है कि इज अ टर्मिनेटर। यस उनको हम लोग यस। ने एक पदवी दे दी है, इज अ टर्मिनेटर, वो थकते ही नहीं है, ही इज अ रोबो प्लेयर। सो वो तो अलग कैटेगरी के प्लेयर है। बट हैविंग सेड, अमित जी है, महेश जी है, इनका जो कंट्रीब्यूशन, उनके माइंड सेट हो गया है कि हमको क्या करना है। तो वही चीज राजस्थान को करना चाहिए था। ऐसे नहीं है कि सम ऑफ लाइक उनका मोरल डाउन कर रहे हैं कि उनके प्लेयर्स नहीं है उनके पास ठीक ठाक। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ माइंड सेट है आपका, क्योंकि आप भी वही लेवल पे खेले हो जो लेवल पे अदर टीम्स खेली है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो राम जी पहले 3-4 मैचेस में इतने दिख के नहीं आए थे। ये यस यस। रिसेंटली अभी लास्ट 2-3 मैचेस में, ये 4 मैचेस में ये उभर के आए हुए हैं। तो एक लगन होती है, एक माइंडसेट होता है, एक रिसर्च होती है जो कि अदर टीम के बारे में करनी जरूरी है, जो कि राम जी ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से की है। ईच एंड एवरी प्लेयर का उनको लूपहोल पता है कि कौन पोल अच्छा डालता है, कौन डाइव अच्छी मारता है, किसका चेंज अंदर का अच्छा है, किसका चेंज बाहर का अच्छा है, यस किसके दो के रनिंग पोल अच्छे है, किसकी जजमेंट अच्छी है। तो उनका वो रिसर्च है। क्योंकि जो बंदा जिसको एज अ बैट्समैन आप टीम में नहीं ले रहे हो, ठीक है, दैट दैट पर्सन इज डूइंग दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। आप देखिए 3 स्काई डाइव्स मारी है पहले अटैक में, ठीक है। अमित ने जो बैटिंग की फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं अभी भी अमित जी को सजेस्ट करूंगा। अगेन अमित जी और हम तो साथ में ही खेले हैं, मुझे आज भी याद है अमित जी को। और हमारा एक भाई नेरुकर चषक वो टाइम पे जो इट्स काइंड ऑफ अल्टीमेट खो खो फॉर अस ऑन दैट टाइम हैव स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, इन सांगली, दैट हैव डन इट इन आई थिंक अराउंड 2012 or 13. यस So we had a match, like I represent Thane on that time, and Amit from Kolhapur on that time. So we had a fight, that a classic match, and we won that match. Kolhapur was one of the classic team on that time. But yeah, so Amit is very experienced player. That I'm saying you. He's a junior, but he played with a lot of senior players. A lot of यस senior players. He have that experience to
survive in this particular segment. He played 55 seconds, but I am expecting a batting like Mahesh and Ramji from Amit. And when it will happen, when he will play out in. If he will only play inside, then he will not able to play above 1 minute at any cost. E- Even Yes. राजस्थान का अटैक हो, किसी का भी अटैक हो, वो 1 मिनट से ज्यादा वो मेरे ख्याल से 50 सेकंड वो खेल सकते हैं। अगर उनको ड्रीम रन्स लेने हैं और ज्यादा अच्छे लेवल पे उनको खुद को रिप्रेजेंट करना है, रेलवे के प्लेयर है वो, मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा अंदर बाहर खेलना चाहिए। व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर उनको ऊपर के जो तेलुगु और जो गुजरात, दो टीम में उनको सर्वाइव करना है तो Thanks, yes. राइट। महेश जी के बारे में मैं हट्सअप हूँ आज, कि जो उन्होंने बैटिंग की है आज, Yes, इज परफॉर्मेंस दिए हैं। वन ऑफ द क्लासिक बैटिंग ही डिड इट। बट अगेन राजस्थान के साथ उन्होंने बैटिंग की है, यही बैटिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे, कि वो गुजरात और उड़ीसा के साथ सेम फ्लो में बैटिंग करे। अभी वो जगह पे आपकी बैटिंग अंदर नहीं होगी। आज महेश जी अंदर बाहर थोड़ा सा बाहर निकले हैं, बट अगेन अगर उनको गुजरात और उड़ीसा के साथ खेलना है तो उनको एक का खो लेना है, प्लेयर को बाहर दिखाना है, अटैक को स्टॉप करना है। अगर खो नहीं डालता है, बंदा टीम में आता है, तो शॉर्ट रिंग या लॉन्ग रिंग भी नहीं, मिड रिंग खेल के आप अंदर आ सकते हो, सो दैट अटैक का फ्लो कम होगा। अटैकर डिस्ट्रैक्ट होके फाउल्स करेंगे और अटैक गिरेगा। So this is the actual batsman mindset that he have to follow. What I personally suggest, he's from my club, which club I represent. I don't know he's looking at my videos or not, but I would like to suggest you. Ramji के बारे में मेरे पास कोई comments नहीं है. He is all rounder वन शब्द player. में He's उनके लिए ऐसे। one of the classic player right now, and he's like his class is different, his fitness is different, his judge is different, his dodgings are very सुपर different क्लास। level. Yeah, his strippings, his playing style, and his calmness, his presence of mind, everything. Altogether, this player is one of the classic player right now. We have found, found out in particularly Ultimate Kho tournament. What I feel, and this kind of platform will give him a next level of booster basically. Again, the good contribution from team for Chennai, भरत जी, राम जी, जो भरत जी है एज अ वजीर, उन्होंने अच्छा अटैक किया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन चेन्नई को मिला है। बट चेन्नई का जो था, आपने अगर देखा तो 3 लोगों के ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो वही चीज राजस्थान को समझनी चाहिए थी, कि ऐसे नहीं है कि सबको ही खेलिए। इट्स अ टीम गेम, डेफिनेटली इट्स अ टीम गेम, बट गनफुले जी का भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। ऋषिकेश जी को मैंने कितनी बारी बोला हुआ है कि ऋषिकेश जी इज अ बैट्समैन, उनको वजीर मत बनाओ और उनको ऊपर खिलाओ। आप उनको एज अ बैट्समैन, आप उनको एज अ बैट्समैन खिलाओ, हम उनको और भी सस्पेंड कर ऊपर सकते हो आप। खिलाओ, उनको बूस्ट करो कि यू आर अ बैट्समैन, यू हैव टू प्ले। उनमें वो कैपेबिलिटी है खेलने की। और मजर जी जो फोर्थ बैच में आ रहे हैं बैटिंग के लिए, मुझे बताइए क्या हो रहा है। ये अगर सही हो रहा 4 से 5 मैच में आप फोर्थ बैच पे आ रहे हो और फोर्थ बैच में आपकी बैटिंग नहीं हो रही है, तो यू हैव टू स्किप द बैच। आप एक तो फर्स्ट बैच में ट्राई कर लीजिए ना, यू आर अ सीनियर प्लेयर, आप इतने हाई लेवल पे और ऊपर के लेवल पे खो खो खेलते हो, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे फर्स्ट बैच में आप 1 मिनट तो खेल ही सकते हो। तो अगर आप स्टार्ट अच्छी देते हो ना, क्योंकि इनके पास स्टार्टर नहीं है, राजस्थान का वीक पॉइंट है, राजस्थान के पास स्टार्टर नहीं है। चेन्नई के पास स्टार्टर है, सब सब टीम्स के है। पास स्टार्टर्स है। अभी इनके पास स्टार्टर नहीं है, इनको इनको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, कोई मुझे बैटिंग में एक स्टार्ट दे अच्छे। यहाँ पे एक ऐसे प्लेयर है राजस्थान वॉरियर्स में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, महेश, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं और यस, वो त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट के हैं। और वो एग्री महेश बहुत ही अच्छे डिफेंस करते हैं और इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने में उनका बहुत बड़ा योगदान था जब इंग्लैंड गई थी इंडिया टीम। हमें एग्री याद है एग्री। मैच अभी भी आप देख सकते हैं इंग्लैंड के यूट्यूब चैनल पे। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस किया था और रिसेंट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो कि मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक 7 मैच हो चुका है लगभग और वो महेश महतिया को अभी तक चांस नहीं। स्टार्टर मेरे ख्याल से मजर जी को मैंने जो बोला, दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए राजस्थान को। अगर एक तो मैच 100% ये जीत सकते हैं, और मेरी ये तहे दिल से तमन्ना है कि ये जीते एक मैच। क्यों मालूम यस है? यस। क्योंकि दो चीजों का इनको फोकस करना है। एक, उन्होंने स्टार्टर, जो फर्स्ट बैच है ना, स्टार्टर इतनी अच्छी मिले ना कि
जो तीनों जाए ना, वो दिमाग में जहन में एक ही चीज डाल के जाए कि हमें ड्रीम रन लेना ही है, साम दाम हाँ। दंड भेद, हमें ड्रीम रन लेना ही है ये मैच। जब भी स्टार्टर मिलेगी ना, तो नीचे के फिर ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, मैंने जो बोला, फर्स्ट अटैक के डबल ड्यूअल पावर से उनको सेकंड अटैक करना है। ये दो चीजें उन्होंने अगर फॉर्मेट पे ध्यान दे दिया, मेरे ख्याल से राजस्थान कैन एबल टू डिफीट एनी ऑफ टीम। दे हैविंग दैट मच कैपेबिलिटीज। ऐसे नहीं है कि उनमें कोई बैट्समैन नहीं है, अटैकर नहीं, कर सकते हैं। इट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक अ बैट्समैन गेम, इट्स अ अटैकर गेम। यस यस। तो अब बढ़ते हैं दूसरे दूसरे मैच की तरफ, जो कि दूसरा मैच ओडिशा और मुंबई खिलाड़ीज के बीच हुआ। तो राहुल सर, खो खो स्किल्स डॉट कॉम, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। प्लीज अरे आप। उड़ीसा में यस बताता यस हूँ मैं, जैसे उड़ीसा का जब मैच स्टार्ट हुआ था तो यस ऑब्वियसली ऐसा लगा था कि थर्ड टर्न तक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लास्ट में जो मैच है वो कहीं ना कहीं टाई की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग यस रहा था कि जैसे मैच टाई हो जाएगा, या फिर ऐसा लग रहा था कि बहुत कम पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अटैक करते हुए मुंबई डेवलप हो गई थी और स्कोर भी सेम ही चल रहा था, आसपास एक दो पॉइंट का डिफरेंस था। बट थर्ड टर्न के बाद जो उलटफेर हुआ है, जहाँ पे जो उड़ीसा है जो लगातार ड्रीम रन ले रही थी, और यस एक दो नहीं, बार बार वो लोग ड्रीम रन ले रहे थे। और आ, हम लोग अभी तक मैच देखते आए हैं, तो हम लोग को अभी पता भी चल चुका है कि मुंबई से गजानन हो गए या फिर दुर्वेश हो गए, ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और लिटरली हर एक गेम में उन्होंने अटैकिंग पॉइंट भी कमाए हैं और डिफेंडिंग पॉइंट भी कमाए हैं। यस यस। लेकिन थर्ड राउंड तक में ऐसा हो गया था कि जैसे लग रहा था कि थक से गए, या फिर कहीं ना कहीं उनका भी मोरल डाउन हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि लास्ट में अटैक करेगी ओडिशा, और लास्ट में अटैक करते हुए डिफेंड करना, एक पॉइंट लंबा पॉइंट हो, बड़ा पॉइंट हो तो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट डिफरेंस बहुत कम है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। तब भी एक उम्मीद था सबके, हमारे एज अ व्यूअर हमारे दिल में भी उम्मीद था कि हो सकता है मुंबई बैक टू बैक अगेन वो 10 पॉइंट का ड्रीम रन दिखे हमें, या फिर 8 पॉइंट का ड्रीम रन दिखे, जहां से मैच में उलट पलट कुछ ऐसा हो। क्योंकि हम लोग दिल की इच्छा थी कि मुंबई इस मैच को जीते, और एक पॉइंट टेबल पे वो कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए एक अच्छा फाइट रखे, जो कि अब होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि चेन्नई ऑलरेडी अब पॉइंट टेबल पे फोर्थ पे है, और अब ऑब्वियसली एक भी मैच जीत जाती है तो टॉप फोर वही होंगे जो हमेशा से दिखते आए हैं, और मुंबई और राजस्थान यहाँ से एग्जिट लेगी। अगेन यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो जैसे डाइव के बारे में बात करते हैं अगर, तो फर्स्ट टर्न में हमने देखा कि कहीं ना कहीं मुंबई फेल कर गई वो डाइव लगाने में। लाइक उन्होंने डाइव से बहुत कम पॉइंट इकट्ठे किए, फर्स्ट राउंड में उन्होंने 6 पॉइंट इकट्ठे किए, वो सारे टच से थे। वो पोल डाइव और खो खो डाइव, जो स्काई डाइव था वो मिसिंग था वहां पे। लेकिन ओडिशा की बात की जाए तो वो शुरुआत से ही वो डाइव लगाते हुए दिखे, पोल डाइव लगाते हुए दिखे, और जो टाइम का ड्यूरेशन था जिसमें उन्होंने सामने वाले टीम को आउट किया वो बहुत कम था। जैसे फर्स्ट टाइम जब डिफेंड करने आई मुंबई, तो उनको 10 सेकंड के अंदर उनके एक प्लेयर को उन्होंने आउट कर दिया था। बहुत अग्रेसिव खेलते हैं उड़ीसा, और ऑब्वियसली 6 मैचेस में से 5 मैचेस वो जीत चुके हैं। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और मोरली बहुत हाई है, टीम स्पिरिट उनका दिखता है ग्राउंड पे, हर एक प्लेयर सिंक्रोनाइज दिखते हैं। और मैंने एक बात नोटिस की है कि बहुत सारे टीम अभी तक जितने देखे हैं मैंने, सब लोगों का फिटनेस बहुत अच्छा है। लेकिन जब यस आप ओडिशा को देखते हो तो उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है ना जिसका फिटनेस थोड़ा सा कम हो। अगर होगा भी तो कोई एक होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है उसमें वो काफी फिट है। कभी भी आप उनको नहीं देखेंगे कि वो लूज हो रहे हैं कई मैच के बीच में, जैसा कि हम लोग ने आज मुंबई को देखा है कि वो थोड़े से लूज हो गए थे थर्ड टर्न में, बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी वीक लग रही थी। बट अगेन अच्छा मैच था, अच्छा फाइट था थर्ड राउंड तक। फोर्थ टर्न में ऑब्वियसली मुंबई ने वो ग्राउंड खो दिया था, बट गुड 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 फाइट फ्रॉम बोथ द एंड। यस। लेकिन जैसा हमें लग रहा है कि जो मुंबई खिलाड़ी कंटिन्यू पिछले 3 दिन से मैच खेल रही है, जिसके कारण वो लोग कहीं ना खेल कहीं, रही थी। दिस इज वन ऑफ द यही यही पॉइंट बैक वो लोग डाले बिल्कुल हैं। बैक टू यही बैक, ड्रॉबैक है। बैक टू, हाँ, यही बैक टू बैक ड्रॉबैक उन्होंने है। 2 मैचेस जीते थे, और यस। ये मैच अगर जीते तो हैट्रिक होता, लेकिन वियर एंड टियर बॉडी पे होता है प्लेयर्स का, और अगर एक दिन का रेस्ट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो दिखता है मैच पे, वही हो सकता है कि आज दिखा हो। आज जो ध्रुवेश जी थे, अपना फुल एफर्ट लगा रहे हैं वो, लेकिन वो नहीं और सो पा रहा है क्योंकि उनका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है उससे आगे। आप लोग भी शायद ये गौर किए होंगे कि ध्रुवेश जी अपना फुल एफर्ट बिल्कुल, लगा रहे हैं, बट बॉडी बॉडी का भी एक अगर लिमिट है वो। वही अभी वही बात था कि मुंबई की तरफ से श्रीजेश थे, उनको अटैकर ऑफ द डे अवार्ड मिला है, उनको अटैकर ऑफ द मैच। ऑब्वियसली अटैक बहुत अग्रेसिव कर रहे थे, लेकिन वही जब अटैक आप हर एक प्लेयर से उम्मीद करते हो। असली में डिफेंडर है सृजेश जी।
जो कि केरला से बिलोंग हाँ करते हाँ। हैं। यस यस। अच्छा। बेसिकली ये अगर आप कंटिन्यू। मुझे मुझे पूछो, मैं यस कंप्लीटली एग्री करता हूँ। अभी यहाँ पे जो रोल प्ले होता है, ये ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली मैचेस खेलते हो, और पर्टिकुलरली अगर कोई एक अभी उड़ीसा को उड़ीसा की जो टीम थी उसको कल रेस्ट मिली हुई है, राइट? यस तो और वो वैसे ही बहुत ज्यादा पैक टीम है, बहुत अच्छे सीनियर प्लेयर्स है वहाँ पे। तो अ, अभी मेरे ख्याल से ये टाइम आता है टू प्ले एक्चुअल रोल ऑफ कोचेस, क्योंकि प्लेयर्स हाँ की बॉडी अभी हो गई है, मतलब एक लेवल पे जाके इट्स ह्यूमन बॉडी, तो वो थक जाती है। तो अभी आपको प्ले यस करना है माइंड से। मैंने पहले भी प्रीवियस कमेंट्स में भी ये चीज बोली हुई है, अगर आपको ओडिशा को हराना है तो आपको वार करना पड़ेगा मिलिंद एंड दीपेश जी, ये दो सीनियर प्लेयर्स के माइंड पे। अगर आप ये दो सीनियर प्लेयर्स के माइंड पे अगर वार, क्योंकि जितने भी मैच ओडिशा वाले हरे हैं अभी तक, जितने भी लॉस किए हुए हैं, वो मैचेस आप ओपन करके उसका चिट्ठा चेक कर लीजिए, उसमें ये दोनों के परफॉर्मेंस नहीं है। यस यस। अगर ये दोनों खेले तो ये मैचेस जीते हुए, सबके साथ जीते हुए, इंक्लूडिंग गुजरात और एवरीवन। तो द एज थिंग वेल इज अब दैट, इनको सपोर्ट भी मिल जाता है उसमें, जैसे कि ये दीपेश जी या फिर से मिलिंद जी जो अच्छा करते हैं, उसके बाद जैसे दिलीप खांडवी जो अभी अपकमिंग प्लेयर है, राइजिंग स्टार, उनका बहुत सब अच्छे प्लेयर है। की तरफ से, तो फिर एग्री, मजा आ जाता एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से चलो दिलीप कांडवी जी और दीपेश जी तो प्लेयर है, बैट्समैन है, आई कैन अंडरस्टैंड। पर जहाँ पे मिलिंद जी ने बैटिंग की हुई है और जो ड्रीम रन लिए, कितनी लंबी बैटिंग की है वो उन्होंने। मेरे को यही नहीं समझा कि मुंबई वालों ने मिलिंद जी को अंदर क्यों खिला रहे हो आप। ही इज अटैकर। मिलिंद जी का जो बेसिक फोटो है, हम एक साथ खेले हैं, ही प्लेड फॉर संगली, एंड हम लोग एक साथ बहुत मैचेस खेले हुए हैं। और मैंने बार बार ही बताया हुआ है वीडियोस में कि मिलिंद जी इज अ गुड अटैकर। उनका जो रन है, वो रन, बोलते ना कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि वो हिडन रन है। आपको है। यस पता नहीं चलेगा, कि आपको लगेगा कि बंदा आपसे दूर है, बट आके आपकी विकेट वो कट करके चला जाएगा। तो यही सेम रन मैंने दुर्वे जी के पास भी देखा हुआ है। दुर्वे जी जब भी भागते हैं तो आपको फील नहीं होगा कि ही इज अ एक्चुअल अटैकर, और वो वहां पे पहुंच पर वो पहुंच जाता है, तो वो हिडन रन होता है। एक उसको बोलते हैं ना, वो रन उनके पास है, वो क्वालिटी है उनके रन में। तो मिलिंद जी का मैंने बोला था कि आप अगर उनको बैटिंग को खिला रहे हो, तो आप उनको बढ़ाओ ना, खो ऊपर ऊपर। आप उनके पीछे लगा रहे हो। एक तो वो बंदे को कल रेस्ट मिली हुई है, आप उसके पीछे खो डाले जा रहे हो। उसकी स्प्रिंट अच्छी है, तो वो बेसिस पे तो वो खेलना ही है उसे। तो एक स्ट्रैटेजी कैप्टन की भी थी, हजारे जी की ये टाइम पे, एंड वाइस कैप्टन एज ए गजानन जी की भी थी, कि उन्होंने ये सजेस्ट करना चाहिए था कि बढ़ाओ, आपको उसको उसको चेक रखने पे मजबूर करो, या तो बाहर निकालो ना। वो बंदे को, अटैकर है, ही इज ऑलवेज कमिंग इन थर्ड बैच और फोर्थ बैच, ठीक है, वो आते हैं ना, तो वो ये कैलकुलेशन लेके आते हैं कि 40-50 सेकंड का मुझे कंट्रीब्यूशन देना है। जो बंदा आज 1.5+ बैटिंग करके गया हुआ है, आर यू थिंकिंग अबाउट कि ये मैच क्यों हारी है? क्योंकि यस आपने जो उनके दो सीनियर प्लेयर्स है, उनके माइंड पे वार किया ही नहीं है। वॉट यू डिड इट, यू आर जस्ट कि हमें जीतना है। आपको उनके दो, मैंने हमेशा मेरे वीडियोस में भी बोला हुआ है कि आपको उनके जो सीनियर्स है उनको आपको निगलेक्ट नहीं करना है। मिलिंद जी का आप अटैक देखिए, आज क्या सपोर्ट किया हुआ है मिलिंद जी। नीलेश यादव, क्लासिक क्विक प्लेयर। नीलेश यादव जी बहुत अच्छे, उनके जजमेंट एक्शन खोज है। अविनाश जी, सूरज जी, गुड कंट्रीब्यूशन इन बैटिंग। मिलिंद टुक वेरी वेरी गुड बेनिफिट ऑफ ड्रीम रन। और खांडवी जी का तो मतलब जो पैटर्न है बैटिंग का, अगर उन्होंने ये फ्लो रखा, तो मेरे ख्याल से ये राम जी को क्रॉस करने की इनकी कैपेबिलिटी है, दीपक खांडवी जी की। अगर वो कंटिन्यूटी रखे, स्टेबिलिटी, थोड़ा माइंड काम रखे उनको, क्योंकि वैसे ही वो बड़े काम प्लेयर लगते हैं मुझे। बट उनको थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, और अपोजिट मैच में कौन है, क्या स्ट्रैटेजी वो यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल खोखो, इट्स अल्टीमेट खोखो, एंड इट्स काइंड ऑफ चेस, जहाँ पे यस आपको चेस में जैसे नेले पे धैला आपको देना होता है, इट्स सेम काइंड ऑफ थिंग। मुंबई में हजारे जी का, जैसे मैंने बोला था कि मुंबई को अगर मैच जीतनी है, तो मुंबई में हजारे जी के साथ गजानन शेंगाल जी का परफॉर्मेंस आना बहुत जरूरी है। अभी आप मुझे बताओ कि गजानन शेंगाल जी लास्ट को थर्ड बैच में, फोर्थ बैच में आते हैं, यस बराबर? यस। फोर्थ बैच में गजानन शेंगाल जी को दोनों हाफ में बचे कितने, 30-40 सेकंड।
बराबर। बंदे का क्वालिटी है टू प्ले 1.5 मिनट to 2 मिनट, और वो उनके उनके साथ जो बंदे रहेंगे वो उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रीम रन में, जहां पे आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। तो आप उनको फोर्थ मैच में खिला क्यों रहे हो? यस इट्स यस इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। उनका कैप, आप उनका परफॉर्मेंस देखो, गजानन शेंगाल जी का कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो मेरे को यही नहीं समझा कि व्हाई नॉट ही इज प्लेइंग अपवर्ड, कि थोड़ा बूस्ट करे, टीम को ऊपर लेके जाए। जो गलती ऊपर राजस्थान ने की वही गलती इन्होंने भी की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि और मैंने और एक सजेशन दिया था कि सेकंड वजीर आप गजानन जी को बनाओ, क्योंकि ही इज अ प्योर अटैकर। बैटिंग तो कर रहे हैं बट ही इज अ प्योर अटैकर। उनके डाइव्स यस वो क्रिएट करते हैं विकेट डाइव्स के लिए। तो आप, और पोल्स भी उनके अच्छे हैं, तो व्हाई नॉट। और क्विक है वो, तो उनको सेकंड अटैकर का देना चाहिए था। और दुर्वेश को तो मैंने टेक्निकल वजीर नाम दिया, टेक्नोलॉजी से काम करते हो, उनका माइंड में चिप बैठा हुआ है, वो उसके हिसाब से वो काम करते हैं। गुड प्लेयर। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख हो रहा है कि दुर्वेश जी जैसे प्लेयर्स, हजारे जी जैसे प्लेयर्स, और गजानन शेंगाल जी जैसा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड अटैकर ऑलराउंडर प्लेयर मुझे अभी आगे देखने नहीं मिलेगा इन नेक्स्ट 4 राउंड्स में। मेरी मतलब आई एम रियली मिसिंग देम। दे आर वेरी नाइस प्लेयर। इवन इंक्लूडिंग, आप आज देखिए सुभाषिस जी का भी इतना अटैक हुआ नहीं है। यस सर राइट, श्रीजेश ने अच्छा किया, श्रीजेश ने क्लासिक बैटिंग की है। बट क्या कर रहे हैं, एक बैटिंग कर रहे हैं तो आप अटैक को छोड़ दे रहे हो। राइट नाउ इज अ मूवमेंट, करो या मरो की मूवमेंट है आपकी। तो जान, मतलब जाए, ये कुछ नहीं होता है इसमें। मतलब वी प्लेड ऑन दैट लेवल की किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और वो बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में था। यस यस तो वो एक बार ग्राउंड में आने के बाद सब हम लोग वी 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 स्किप्ड इट एवरीथिंग, एंड वी जस्ट फोकस कि मुझे मेरे 1 मिनट देके जाना है। सो दैट मेरे को थोड़ा सा मुंबई की तरफ से वो जो इंथुसिज्म थोड़ा सा कम लगा, जो चाहिए था उनको, क्योंकि उनका माइनस पॉइंट था, ओडिशा के पास रेस्ट थी, उनको डबल पावर लगानी थी, मिलिंद जी और दीपेश जी के माइंड पे अटैक करना था, जो सीनियर प्लेयर्स है, क्योंकि लेकिन वो ज्यादा भाग ही नहीं रहे थे। So यस this यस is all about my analysis about, like, today's Orissa versus Mumbai की मैच। ओके सो रियली आज का मैच जो ओडिशा जगरनॉट्स अगर कहें तो ओडिशा जगरनॉट्स अगर चेजिंग नहीं भी करते, डिफेंस में अगर उन्हें टाइम पे दिया जाए तो डिफेंस में वो डिफेंस करते हुए एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न कर लेंगे और उससे वो मुंबई मुंबई को हरा सकते थे। इतना एग्री, उनका डिफेंस स्ट्रांग है मुंबई, ये ओडिशा जगरनॉट्स एग्री, का। एग्री। यस यस तो उम्मीद आज करते हैं कि योगेश जी नहीं है, आई थिंक उनकी कुछ एग्जाम्स चल रही है साई में। So probably he is not joining today. So यस probably यस will be joining by tomorrow. यस तो ऑडियंस नाउ इट्स योर टाइम। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार सेशन है, आप लोग के लिए क्विज क्वेश्चन का राउंड। आज का क्वेश्चन ये रहा कि अल्टीमेट खो खो सीजन फर्स्ट प्लेऑफ्स क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट टीम का नाम क्या है? वी विल एक्सेप्ट ओनली 2 टॉप प्लेयर। जो भी टॉप 2 कमेंट रहेंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अल्टीमेट खो खो सीजन 1 में फर्स्ट टीम कौन सी है जिन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है? पहला 2 कमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और वो रहेंगे विनर। उन्हें टिकट्स मिलेगी सेमीफाइनल और फाइनल मैच देखने के लिए। आप जाके बालीवाड़ी जाइए, स्टेडियम जाइए और आप मैच देखिए वहां पे। So we are waiting for your answer, audience. Hurry up. Same time पे, if someone wants to understand anything about the Kho or Yes, any questions about Ultimate Kho, or any like the small questions about it, we can discuss. yes, yes. At same विजय time, वर्मा जी विजय वर्मा जी के कमेंट्स मत देखना आप। He is one वो of the strong follower of our show, and I really appreciate and thank you Vijay Verma ji from our side. बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं गेस। सेम बंदे कल वाले फिर से रिप्लाई कर रहे हैं। ओके ऑलराइट। तो और भी हमारे और भी ऑडियंस का कमेंट का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अल्टीमेट खो खो सीजन फर्स्ट कौन सी ऐसी टीम है जिन्होंने प्लेऑफ्स के लिए सबसे पहले क्वालिफाई किया है?
विजय वर्मा जी, हमारे पास और भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सही में नहीं पता होगा, लेकिन क्विज को थोड़ा इजी किया जाए ताकि सभी ऑडियंस को आंसर लगभग मालूम हो, तो फिर वो ज्यादा मजेदार होता है। विजय जी के लिए मेरा सेपरेट क्वेश्चन आएगा अभी। ओके, तो आप पूछ लीजिए सर, वो रहेगा अल्टीमेट ये आज नहीं, का वो क्विज। वो विजय जी को मैं कल पूछूंगा एक क्वेश्चन। विजय जी, आप उसका आंसर ढूंढ के दिखाइए। ओके, श्योर श्योर श्योर। तब तक राहुल सर, जो आपका जो खो खो स्किल्स डॉट कॉम है उसके बारे में हमें हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, ताकि उससे भी बेनिफिट हो जाएंगे प्लेयर्स सर। किंग जी, किंग कौन है? उन्होंने रिप्लाई किया है, गुजरात जॉइन। यस यस। मिस्टर आनंद ने भी रिप्लाई किया हुआ है। मिस्टर आनंद भी ना? स्नेहा जी ने रिप्लाई किया हुआ है, स्नेहा महाजन। यस। तो आज के हमारे क्विज के विनर हाँ। होते हैं किंग S0900, जो कि सही आंसर दिया, और उनके साथ दिए हैं मिस्टर 360 आनंद। तो आज के क्विज के विनर हैं आप दोनों, और आप लोग से कल मॉर्निंग में आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आप तक आपका अवार्ड दिला दिया जाएगा। तो तब तक आप राहुल सर, आप अपने खो खो मैं स्किल्स डॉट में कुछ। हाँ बताता हूँ। मैं जैसे खोखो स्किल्स डॉट कॉम तब आया था जब खो खो के बारे में कोई वेबसाइट नहीं था। लिटरली इंडिया में क्या, वर्ल्ड लेवल पे कोई वेबसाइट था ही नहीं जो खो खो के बारे में इन्फो दे रहा था। अगर ये वेबसाइट थी भी तो एक पेज बना हुआ था बस कि खो खो ये है, बस खत्म हो गया। लेकिन ना खो खो के रूल्स थे कहीं पे, ना खो खो के बारे में इंडेप्थ था, ना हिस्ट्री था। कौन से खो खो के गेम्स हो रहे हैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं था। स्किल्स क्या होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या होते हैं, कहीं पे भी ये चीज था नहीं। प्लस कहीं पे भी खो खो का बेसिक लेवल का न्यूज नहीं था। तो मुझे लगा कि यार कुछ अपना तो होना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया का है तो कुछ तो खो खो का रहना चाहिए, वेबसाइट ऐसा डेडिकेटेड सिर्फ खो खो के लिए। तब जाके वहाँ खो खो स्किल डॉट कॉम आया। मेरे को वेबसाइट ये सब बनाना नहीं आता था, तो स्पेशली मैंने खो खो के बारे में लिखने के लिए वेबसाइट अवेलेबल हो सबके लिए, लोग ढूंढे, सबको पता रहे, उसके लिए मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी और वो वेबसाइट बनाया। उसके बाद इंटरनेट से ही या फिर लोकल पुस्तकालय से बुक्स उठाए बहुत सारे, जहाँ पे खो खो के बारे में रूल्स पता हो, लिखा हो, और उसको ट्रांसलेट करके हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश के पीडीएफ मिले तो उसको फिर टाइप करके फिर वो वेबसाइट को हम लोग क्रिएट किए, बनाया उसको। वेबसाइट तो चलो बन गया था। उसके बाद बहुत सारे होते हैं कि वो दिखता नहीं है, पता नहीं होता है कि कैसे गूगल सर्च पे वो आए, ऊपर कैसे आए, दिखे कैसे, क्योंकि जब खो खो टाइप करते थे तो सिर्फ न्यूज चैनल आता था, कोई वेबसाइट नहीं आता था। तो उसके लिए फिर उसका एसईओ, सर्च इंजन मैट्रिक्स होता है, बहुत सारी चीज सीखी उसके बारे में। उसको धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर लेकर आए। फिर हुआ कि यार उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत कम ऑडियंस आती थी। तो लगा कि यार एक ग्रुप डेडिकेटेड होता तो मजा आता। तो उसी यस। समय आसपास 6-7 साल पहले फेसबुक का ग्रुप बनाया। 4 साल 5 साल पहले फेसबुक का ग्रुप बनाया कि चलो ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप बना देते हैं खो का, और अपना न्यूज वहां लिखेंगे और वहां पोस्ट कर दिया करेंगे, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये चीज है। तो खो खो का ग्रुप बनाया हमने। अभी वो मेरे ख्याल से उतना ग्रुप, बड़ा ग्रुप प्लीज मेरे को नहीं लगता है कि कोई और होगा। तकरीबन 1,04,000 मेंबर है उसमें, उस ग्रुप में, फेसबुक के। और बहुत एक्टिव ग्रुप है वहाँ पे। प्लेयर्स खुद पोस्ट करते रहते हैं कि वीडियो बनाते हैं खुद अपना, या फिर कोई न्यूज होता है तो वो खुद पोस्ट कर लेते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल, स्टेट लेवल पे मैचेस होते रहती है उसकी वीडियो डाल देते हैं, अनाउंसमेंट डाल देते हैं। तो अच्छा लगता है, ग्रुप से अपना इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ गया, लोगों तक नॉलेज ज्यादा पहुंचने लगी। लोगों को बाकी पता चलने लगा कि हाँ उस स्टेट में वहां पे खो खो हो रहा है, या फिर कोई होने वाला है खो खो का प्रतियोगिता, तो वो डालते हैं वहां पे पोस्ट, यार जिसको जिसको जिसके जिसके पास टीम है वो पार्टिसिपेट करो। तो कहीं ना कहीं एक जो मीडियम मिसिंग था उसको हमने क्रिएट करने का कोशिश किया, और प्रिंस उसमें बहुत बड़े भागीदार है, क्योंकि बीच में प्रिंस भी वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, न्यूज न्यूज लिख रहे थे, कुछ भी अपडेट्स आ रहा था वो न्यूज डाल रहे थे वहां पे लिटरली। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम क्रिएट हो गया कि चलो खो खो के बारे में लोगों को पता चला। बाकी जब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस दिल्ली में बना, तो ऑब्वियसली उसका गूगल पेज, बिजनेस पेज मैंने पहले बना दिया था, बाद में उन्होंने क्लेम करके अपने पास ले लिया। तो लगा मेरे को भी कि हाँ खो खो को एक फेडरेशन बन गया तो अब जाकर कहीं ना कहीं पुश होगा। लेकिन इतना नहीं उम्मीद था कि इतने कम समय में अल्टीमेट खो खो आ जाएगी और वो यस। इस तरह से टेक ओवर करेगी और इतना ज्यादा मजा आने लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट कंट्रीब्यूट किए हम लोग मिलके, जितने भी खो खो ग्रुप्स है, लवर्स है, प्रोमोटर्स है, छोटे छोटे ग्रुप्स है, वो लोग का एक कंट्रीब्यूशन आज रंग दिखा रहा है। और अच्छा लगता है देख कर कि यार एक गेम को जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो इतना आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यही था डिटेल जो हमारा मेरा छोटा सा जर्नी है। मेरी आपने और एक सजेशन, यस मेरी मेरी यस। और एक मतलब, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण ये खो खो डिजिटली प्रमोट हो रहा है। दैट इज रियली रियली अप्रिशिएट, एंड आप करते रहो ये चीजें। आपको कोई सपोर्ट रहेगा तो हम लोग है वहाँ पे।
दूसरी चीज मैं एक मतलब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलो ठीक है, अभी सब प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैनेजमेंट है, सब है, बट खो खो यहाँ पे आने के लिए उसके बैकग्राउंड बहुत लंबी है। ठीक है, तो हाँ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि लाइक प्रीवियसली जितने भी लोग अवार्ड विनर्स है, या रेलवे को आप एक एक अगर रेलवेज के प्लेयर्स का एक उसमें एक ब्रैकेट की रेलवेज में इतने प्लेयर्स खेलते हैं, वेस्टर्न, साउथ, सेंट्रल, फिर जो नेशनल्स खेले हुए हैं, नेशनल्स का ठीक है, चलो नेशनल्स तो इट्स फाइन, बट अवार्ड विनर्स है, जो भी जितने भी आप एक कोई पोल करो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या कि जो जो अवार्ड विनर्स है उनकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें तो जीडीपीआर का भी इशू नहीं होगा, तो वो दे विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन कलेक्ट इट एंड वो आप डिस्प्ले करो। तो मैं चाहूंगा कि कंट्रीब्यूशन जो खो खो ये लेवल पे पहुंचा है उसमें जितनों का कंट्रीब्यूशन है वो सबको उसका ऑनर हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और इसी के साथ हमारे साथ अभी योगेश प्रकाश मौर्य सर कुछ कुछ देर पहले ज्वाइन किए हैं। तो नमस्ते योगेश सर, वेलकम इन द नमस्ते। अल्टीमेट सेशन। नमस्ते नमस्ते एंड सॉरी फॉर लेट हो गया मुझे एक्चुअली। थोड़ा एग्जाम का कोई नहीं, प्रेशर था कोई बात नहीं। और मैं बाहर था ना, लेट आ गया, इसकी वजह से थोड़ा ज्वाइन नहीं पर कर पाया मैं। कोई बात नहीं सर, कोई आप नहीं इसके योगेश जी। बावजूद भी टाइम दे रहे, दैट इज टू मच इनफ फॉर अस। हाँ हाँ राहुल जी बोलिए। यस कोई सर। नहीं। तो आज का मैच जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, राजस्थान और चेन्नई में बहुत ही शानदार मैच रहा, जिसमें चेन्नई फुल डोमिनेशन के साथ मैच जीत गया। वहीं दूसरा मैच ओडिशा और मुंबई खिलाड़ीज के बीच था, जिसमें ओडिशा फुल डिफेंस के कारण बहुत ज्यादा पॉइंट स्कोर की और इजीली मैच जीत गया वो। और हम लोग अभी तक अपने क्विज का विनर्स का भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। सो कुछ ऐड करना चाहेंगे तो सर आप लोग प्लीज ऐड। योगेश जी रेंज में हो आप? हेलो। शायद नेटवर्क इश्यू है शायद मुझे। हेलो। आई थिंक मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, योगेश जी है नेशनल इंडिया कैप्टन है, गोल्ड विनर है, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप पूछ सकते हो, ही कैन एबल टू आंसर यू। यस यस। जैसे कल अपने पास बहुत सारे राहुल जी। क्वेश्चंस आए थे। हेलो। हाँ, बोलिए मोरे मोरे जी। हेलो। यस मोरे जी। एक्चुअली मुझे मतलब ये लगता है जैसे कि अभी ये अल्टीमेट खो खो शुरू किया है, अगर ये जहाँ पे मतलब 6 अटैकर बैठते हैं, अगर यहाँ पे 9 अटैकर 8 अटैकर बैठेंगे, जो हम लोग जो रेगुलर खो खो खेलते हैं, अगर वैसे में अल्टीमेट हो जाता है तो थोड़ा डिफेंडर के लिए भी एक प्लस पॉइंट होगा। और मतलब ग्राउंड भी बड़ा होगा और उसमें क्या है, जो एक अच्छे अच्छे स्किल वहाँ पे दिखने को मिल सकते हैं डिफेंडर के साइड से। 100%, 100%। मेरा भी था ये मतलब मानना कि जो ट्रेडिशन है, जो बेसिक फॉर्मेट है खो खो का, वो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट आप रखिए जो कि वजीर का है, आप 3 वजीर कर दीजिए। अगर आपको पावर प्ले करना है तो आप 3 वजीर, आपको अगर उसमें फेम लाना है थोड़ा सा तो आप 3 वजीर कर सकते हो, 2 पावर प्ले ले सकते हो। आप बैचेस बढ़ा दीजिए थोड़े से, जहाँ पे आपके 4 बैचेस है उसको 5 कर दीजिए। बट जो बेसिक फॉर्मेट और जो पैटर्न है, जो एकदम ट्रेडिशनल पैटर्न है, मेरे ख्याल से उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो जो लेवल की अभी बूस्ट मिल रही है, जो कुछ लेवल की रीच मिल रही है, वो मिल सकती है। आई एम ऑल्सो एग्री विद यू। एक्चुअली क्या है, जैसे कि ग्राउंड छोटा होने के कारण जो खो खो के जो स्किल्स है वो हमें दिखने में मतलब थोड़ी कमी हो रही है, कि दिखने में नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटा ग्राउंड होने के कारण सभी लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पकड़ा पकड़ी करने जा रहे हैं। तो अगर बड़ा ग्राउंड होता है तो स्किल दिखाने के लिए भी थोड़ा मौका मिल सकता है, और डिफेंडर के लिए भी थोड़ा मतलब डिफेंसिव साइड के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड होने के कारण डिफेंडर ना अच्छे से डिफेंस कर पा रहे हैं, ना कुछ मतलब स्किल दिखा पा रहे हैं। यस यस, टोटली एग्री विथ यू सर। उसमें और जैसे एक मैंने चीज भी नोटिस किया है कि जैसे, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। उसमें और एक चीज ये हो रही है योगेश जी कि कैसा है कि जो एक्चुअल जो टीवी पे हम लोग दिखा रहे हैं, जो टीवी पे हम लोग शो कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर्स का कहना ये है, जो मैंने सुना है अभी तक, कि हमें जो एक्शंस है वो प्रॉपरली दिखाने हैं लोगों को, जो डिस्प्ले करने हैं। ओके। अभी मैंने बहुत दिनों के बाद
नीलेश पाटिल जी की एक जजमेंट को, एक्शन को देख के पोल देखा हुआ, जो कि एक्चुअल ट्रेडिशन है यस। खो खो का, वो मिसिंग है। मैं आई टोटली एग्री विथ यू कि वो जो एक्चुअल ट्रेडिशन, जो पोल मार के हम लोग स्टॉप करते हैं प्लेयर को और विकेट मारते हैं पोल डाइव करके, जो जजमेंट करके हम लोग विकेट पोल पोल डाइव करते हैं, तो वो यस। एक्चुअल ट्रेडिशन है जो खो खो का, वो मिसिंग था। आज मैंने नीलेश पाटिल जी ने अच्छी जजमेंट की है, एंड उन्होंने एक हजारे जी की आई थिंक विकेट मारी है उन्होंने। तो दैट दैट दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मिस आउट लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट। बट इट्स फाइन कि एटलीस्ट दे आर टेकिंग अप खो खो ऑन टीवी ऑन अ फेम लेवल। तो मेरे ख्याल से बोथ ऑफ साइड्स हम लोग को कहीं ना कहीं पे सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। बट अगेन मेरे ख्याल से वो लोग अल्टीमेट की टीम ही खुद मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम पे 8 प्लेयर्स पे जाएगी। सेम टाइम पे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि at least they can start with the girls team as well. I will request them कि आप जो गर्ल्स की भी जो 6 टीम्स है जैसे बॉयज की है, एटलीस्ट 4 टीम्स यू कैन मैनेज फॉर अ गर्ल्स। क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैचेस ऑफ गर्ल्स। हमारी छोरी अभी छोरों से कम नहीं है, व्हाट आई फील। बिल्कुल सही बोला। आज इसी के बारे में मैं भी बात कर रहा था अपनी स्ट्रीम पे कि यार अभी बॉयज का तो स्टार्ट हो गया, गर्ल्स का भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो तो मजा है। और जहां तक फॉर्मेट का बात कर रहे थे, एक और मैंने मैचेस में देखा है कि जो शॉर्ट आउटेड प्लेयर्स है उनके तरफ से तो हमें डॉजिंग दिख रही है। जैसे आज हमने देखा दिलीप कांडेवे का, देख लिया कि यार चलो शॉर्ट आउटेड है, वो निकल गए। लेकिन जब बड़ा ग्राउंड होता है तो डॉजिंग हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है और बहुत यस। एविडेंट है कि वो, समझ रहे हो ना, कि एक मजा आता है देखकर उसको, कि रश आता है, एड्रेनलिन रश होता है कि यार क्या डॉज किया है। उस तरह का वो चीज है ना कहीं अल्टीमेट में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है इस छोटे ग्राउंड के कारण या फिर फॉर्मेट के कारण, बोल सकते हैं। हाँ, एग्री इसका मतलब मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जैसे अगर बड़ा ग्राउंड हो सकता है तो बड़े ग्राउंड में मतलब हमें स्किल भी बहुत सारे दिखने के लिए मिल सकते हैं। और टाइम जैसे 7 मिनट हाँ का क्या है, जैसे अगर रेगुलर अगर 9 मिनट का भी होता है तो भी हम लोग मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिखने को मिल सकता है वहाँ पे। यस। यस। और ये गेम इतना फास्ट हो गया है, मजीद आ गया है जिसके कारण ग्राउंड है तो गेम को जिसमें सही दे दिया प्लेयर। और मेरे मेरे मेरा और एक सजेशन है कि अभी जैसे मुझे कल एक क्वेश्चन पूछा था, त्रिपुरा के एक प्लेयर थे, युवराज जी थे, उन्होंने पूछा था कि त्रिपुरा की जो टीम है स्टेट की, जो नेशनल की टीम है, वो रैंकिंग में नहीं आ रही है। तो उनसे हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंस हमारी टीम, कि उनको कैसे हेल्प किया जाए। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, क्योंकि आपको बेस पक्का करना पड़ेगा। तो बेस कभी पक्का होता है जो स्कूल में आपके बच्चे होते हैं 10 से 12 साल के, ठीक है, वहां से आप वर्क करना चालू करो उनके ऊपर, वो लेवल से। तो अभी जो आपके पास, तो मतलब हमारे हमारे जमाने में हमारे पास कोई वीडियोस भी नहीं होते थे। हम लोग जो वीडियोस हाँ निकालते थे तो वो वीडियोस दिखते भी नहीं थे ठीक से कि कैसे जज करें अपोजिट साइड को। So I think right now they're having a lot of qualitative material that they can utilize and they can watch on YouTube. All young kids are now very digital. They are looking at the videos on YouTube and all. So मेरे ख्याल से schools को mandatory करना चाहिए। What I feel, मतलब जैसे आप कोई चीज मैंडेटरी करते हो, तो खो खो और कबड्डी जो अपने गेम है, ठीक है, वो गेम्स को आप ना बुक्स में मैंडेटरी करो। व्हाट आई यस। फील कि आप जो आप वीक में एक बार अल्टीमेट खो खो की मैच दिखा दो। आप जैसे हर एक स्कूल्स में अभी स्क्रीन्स होती है बड़ी बड़ी, अभी बहुत ज्यादा हो गए। हमारे टाइम पे कंप्यूटर आता था, वही बड़ी चीज थी। अभी इनको स्क्रीन्स मिलती है बड़ी बड़ी, तो आप स्क्रीन्स पे दिखाओ ना अल्टीमेट की मैच। तो बच्चों में ना वो जो खो खो का जो प्रचार है, जो पेनेट्रेशन है, जो उनका माइंड सेट है टूवर्ड्स टू दी खो खो एंड कबड्डी, मैं कबड्डी को भी बोलूंगा, आई डोंट नो दे सेइंग अबाउट खो खो, बट आई वुड से अबाउट कबड्डी एंड खो खो कि आप दोनों गेम्स को प्रमोट करो, स्कूल्स में प्रमोट करो एंड कम एज के बच्चों में प्रमोट करो। ऐसी राहुल काम जी, कर रही है गुजरात जैसे अभी आप बैंक। राहुल जी, अगर अभी आपने बताया है कि जैसे स्कूल में स्क्रीन लगानी चाहिए, ये बात आपने अभी कही, तो हमारे कोल्हापुर में जो हमारा क्लब है, हमारे क्लब में ये मैचेस हम लोगों ने स्क्रीन पे दिखाने के लिए स्टार्ट किया है। जय हिंद मंडल क्रीड़ा मंडल हमारा जो क्लब है वहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीन लगाई है। और मतलब ये एक बात भी है कि जो वहाँ पे जो बार है, बियर बार,
जो होते हैं ना, वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन दिया था, किसी ने दिया था पता नहीं, वहाँ पे भी ऐसे एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ पे मतलब अल्टीमेट खो खो के मैचेस लाइव दिखाने चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने खो खो के मैचेस भी वहाँ पे दिखाने के लिए स्टार्ट किया है कोल्हापुर में। और So it's और एक बात it's अभी, kind of जैसे sports आपने, bar. यस यस यस, जैसे हम लोग आईपीएल की क्रिकेट देखते हैं वैसे वहां पे अल्टीमेट खो खो लीग दिखा रहे हैं। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है उसका, जो लाइव दिखा रहे हैं, और एक एप्लीकेशन भी दिया था उसकी भी कॉपी की एक फोटो है। और एक बात अभी आपने कही थी कि जैसे त्रिपुरा के बारे में कुछ बताया था कि उनको मतलब कैसे खो खो को ये करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपने भी आंसर दिया था कि जैसे हम जब खेलते थे तो हमारे टाइम पे कोई मतलब ये वीडियोस वगैरह ये नहीं थे, या फिर कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो मेरा मत पर्सनल एक मैं एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जैसे हमें कोल्हापुर से खेलता था, तो हम लोग जब खेलते थे, तो जब हम नेशनल में खेलने के लिए जाते थे, तो हम लोग घूमने के लिए जाते थे। मतलब बैग जो हम लेके जाते थे, कि हमें ये पता था कि हमें वहां पे जाना है, और 2-3 मैच खेल के हम लोगों को घूमने जाना है। तो शुरू शुरू में हम लोगों के साथ वही होता था। लेकिन जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, तो उन्होंने हमें समझाया कि जब हम नेशनल खेलने के लिए जाते हैं, तो जो अच्छी टीम होती है, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटका है, तो उनको ये पता था कि ये टीम में कौन से प्लेयर अच्छे हैं, किसका स्किल अच्छा है, कौन डिफेंस में अच्छा है, किसके पास क्या स्किल है, स्पेशलिटी है। तो हमें वो मैच दिखाने के लिए बिठाते थे और बताते कि ये ऐसा ऐसा स्किल होता है। और वहाँ ग्राउंड पे जाने के बाद वो हमें वो स्किल करवा के लेते थे, या फिर हम लोग क्या करते थे, खुद ऑब्जर्व करते थे कि ये डिफेंस ऐसा कर रहा है तो रिंग कैसे खेल रहा है, अगर वो ट्रैक कवरिंग कर रहा है तो कैसे जजमेंट को कैसे कर रहा है, ट्रैक कवरिंग करता है तो वह किस तरह से आउट अटैक मारता है, इन अटैक करता है। तो ये हम खुद ऑब्जर्व करते थे, और हमें हमारे जो टीचर्स थे वो हमें सपोर्ट करते थे, लेकिन हम खुद ऑब्जर्व करते थे, हम लोग टीचर को पूछते थे। अगर ये ऐसे खुद ऑब्जर्व करके अगर सीखेंगे ना, तो जल्दी ये हो सकता है ऑब्जर्व। अभी ऑब्जर्व करने के लिए सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है अपलोड किए गए हैं। अभी इतने होने के बाद वो ऑब्जर्व करके जल्दी सीख सकते हैं। बात यह है कि वहाँ पे कई जगह ऐसे है, नॉर्थ साइड पे हो या साउथ साइड पे तो क्लब है, लेकिन नॉर्थ साइड पे मोस्टली ये है कि वहाँ पे क्लब्स नहीं है, डेली प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो उसी के कारण ही, एक ही कारण यही है कि उसी के कारण वो डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या जो स्किल है वो रेगुलर अगर करते हैं तो वो सीख पाते हैं अच्छा बेस। जो आपने जो बोला था कि खो खो का बेस होना है, मतलब जैसे कि हम लोग गिविंग खो देते हैं या फिर ट्रैक कवरिंग करते हैं, जो डिफेंसिव साइड में जो होते हैं सिंगल चेन, 3-6 चेन, रिंग गेम, अगर ये हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग मैच में खेल सकते हैं। अगर हम लोग टीवी पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, और हम लोग ये सोचेंगे कि मुझे मैच में जाके खेलना है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग, हमारे पास में क्लब है, वहाँ पे क्लब नहीं है, तो वहाँ पे अगर खो खो में जिसके जिसको इंटरेस्ट है, वहाँ पे उन लोगों को लेके या फिर स्कूल के बच्चों को लेके अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो तभी खो खो बढ़ पाएगा, या तभी खो खो वो सीख पाएंगे अच्छे से। यस यस यस। अभी धीरे धीरे अब So डेवलपमेंट होगा, जैसे अल्टीमेट खो खो आया है, सभी के दिलों पे राज करेगा, और अभी स्टेडियम भी बनेगी, क्लब भी बनेंगी, और खो खो बहुत आगे भी जाएगा सर। agree. यस यस। स्नेहा जी ने कुछ बड़ा सा मैसेज किया हुआ है कि मुझको खो खो इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, जम्मू कश्मीर में खो खो का यहाँ फोकस नहीं करता। स्नेहा जी, अगर आप इनिशिएटिव लीजिए, आपको अगर कुछ जम्मू कश्मीर में अगर आपको इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, इफ यू नीड एनी गाइडलाइंस, इफ यू नीड एनी हेल्प, आप हमें बताइए। आई वुड लाइक टू डेफिनेटली हेल्प यू टू पेनिट्रेट खो खो इन जम्मू एज वेल। कोई नहीं, सब जगह पे करेंगे अपना ये सब। ओके ऑलराइट। तो वो जो अभी स्नेहा महाजन जो आपको अभी बता रहे जम्मू कश्मीर के प्लेयर है, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, स्कूल लेवल का गेम हो या कोई भी लेवल का गेम। और अभी हाल ही में वो नेक्स्ट लेवल जो भी उनका टूर्नामेंट हुआ है, उसके आगे के लिए सिलेक्ट हुई है। कल ये न्यूज दी थी हम लोग को, एक लाइव से।
तो हमारे तरफ से हमारे जितने भी चीफ गेस्ट हैं उनको आप खेलते रहिए और आगे इसी तरह सीखते रहिए। मेरे आज के क्लोजिंग नोट रहेंगी एक, मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा अल्टीमेट खो खो को कि नेक्स्ट टाइम आप 4 गर्ल्स की टीम रखिए, चार यस, गर्ल्स की टीम रखिए। जो मैंने सिग्नेचर बोला था कि हमारी छोरी अभी छोरों से कम नहीं है, तो अल्टीमेट में आप लाइए, छोरियों को वो लाइए होगा आप। क्या? ये अभी होगा अगर ये अल्टीमेट से बॉयज का सीजन है। गर्ल्स का भी सीजन 1 बहुत जल्दी है, हमें ऐसा लग रहा है। एग्री। बिल्कुल। क्योंकि गर्ल्स का भी प्रैक्टिस किया गया, गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग सेशन जो किया गया था बॉयज का, जो 3 सेशन में टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन, वैसे गर्ल्स को भी बुलाया गया था, गर्ल्स को किया गया था। उम्मीद करते हैं कि उन लोग के लिए भी टूर्नामेंट्स होंगी बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं योगेश सर को कहीं ना कहीं इसके बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन रहता है। अभी यस, तो यस। डिस्कनेक्ट है योगेश सर। हाँ, सर को कॉल आया होगा कहीं से। तो ऑनलाइन ऑडियंस, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी चीफ गेस्ट है, एक्सपर्ट है, वो आपको जरूर सॉल्व करेंगे आपके डाउट को या क्वेरीज को। 2 मिनट और लाइव रहेंगे हम लोग, उसके बाद फिर इस सेशन को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। किसी ने लिखा है इंडिया कैप्टन रेलवे बेस्ट प्लेयर, कोल्हापुर का बेस्ट प्लेयर है योगेश सर। योगेश सर और मैं एक ही लेवल पे खेले हैं, मेरे से 1 साल बड़े हैं। 86 बॉर्न रहेंगे आई थिंक योगेश सर, और 87 में था। बट मेरे फेवरेट प्लेयर योगेश जी है, पहले भी थे और अभी भी है। मैंने उनका फर्स्ट गेम रत्नागिरी रत्नागिरी में मैंने देखा था। रत्नागिरी में हम लोग तभी आई थिंक स्कूल नेशनल्स हम लोग खेलने गए थे वो टाइम पे, स्कूल नेशनल्स थी वो टाइम पे। तो रत्नागिरी में शिवाजी स्टेडियम, मुझे आज भी याद है योगी जी, राइट? शिवाजी स्टेडियम में। यस 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 अ, यस बिल्कुल। और एक प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा, मेरे मेरे लिए पर्सनली जो इंस्पायरिंग था, जो मैं खो खो में जो मैंने एंट्री की थी, एक प्लेयर की मैंने डाइव देखी थी, जिनको हम प्रदीप प्रदीप जी का नाम क्या है योगेश सरनेम? प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल जी। प्रदीप यस पाटिल यस। जी की मैंने एक डाइव देखी थी रत्नागिरी में, और वो डाइव देखने के बाद मतलब मेरा खो खो का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा था। इंस्पायर हो गए होंगे आप। इंस्पायर हो गया था मैं। बट वो दिख नहीं रहे हैं ज्यादा अभी खो खो में, बट ही इज वन ऑफ दी, लाइक, जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और योगेश जी तो तभी से ही हमारे फेवरेट प्लेयर रहे हैं। यस, यस। यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया विजय वर्मा जी का कि सर खो खो मैच बहुत कम होते हैं, सर कुछ आइडिया है? कहाँ पे? नॉर्थ साइड में कम होती कहाँ है। से हो विजय? विजय वर्मा कहाँ से है? नॉर्थ 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 में भी कहाँ से हो? दिल्ली से हो? यूपी से होंगे ये। दिल्ली से ही आई थिंक विजय जी। चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आए। चंडीगढ़ से योगेश जी। आई थिंक बैड रिसेप्शन है योगेश जी के साइड से। नेटवर्क इशू है थोड़ा। बैड रिसेप्शन। मैं क्लियर आउट कर देता हूँ योगेश, विजय जी। हमारे यहाँ पे 2 मैच होते हैं बस। तो विजय जी आपको क्या करना है ना, मैं बताता हूँ आपको, इसमें बहुत बहुत जबरदस्त सी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप क्या कीजिए ना, कोई पर्टिकुलर अभी जो स्कूल्स है, ठीक है, आप ना स्कूल्स की टीम्स रेडी कीजिए। आपके यहाँ पे जितने भी स्कूल्स है, पूरा स्कूल का डेटा कलेक्ट कीजिए, ठीक है, और स्कूल्स की टीम्स आप बनाइए। जो छोटे छोटे स्कूल्स है उनकी मतलब 12-12 10-10 साल के बच्चों को ना बेसिक खो खो सिखाइए। ऑटोमेटिकली आपके पास जब भी फ्लो बढ़ेगा ना, तो आपके पास टीम्स बढ़ेंगी, और जैसे जैसे आपके पास टीम्स बढ़ेंगी ना, तो स्पॉन्सर्स होते हैं बहुत सारे, जो इंट्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको उनको फ्लो दिखाना पड़ेगा कि हमारे, अभी फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में मेरे पास 10 स्कूल की टीम्स है, यंग बच्चे हैं जो कि एक अच्छा खो खो दिखाते हैं।
जो डेफिनेटली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनसे आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो ये सब चीजों में कि हमें ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर ये प्रोग्राम करना है खो खो का, तो वो आपको देंगे, बट यू हैव टू शो देम कि हमारे पास इतने लोग हैं। आपको पहले आपको आपके साइड से मटेरियलाइज करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या फ्लो है। और इसमें हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास चंडीगढ़ या फिर से हरियाणा या फिर से पंजाब हो गए, उसके आसपास के जो भी ऑफिशियल्स या ऑफिसर प्लेयर, उन लोगों से कांटेक्ट होता है। तो आप हमसे ट्राई एग्जैक्टली। करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिशमेंट करके आपके नियर बाई क्लब या एसोसिएशन होगा डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, तो उससे आपको हेल्प करा सकते हैं, आपको खेलने में और भी सुविधा होगी। और ये पेज जो हमारे ऑफिशियल खो खो लवर है ये या फिर से चैंपियंस, बेसिकली हमारा मोटो यही है कि जो भी प्लेयर्स हैं खो खो skills.com, जिन्हें भी कोई इंफॉर्मेशन का जरूरी पड़े, वहां से आप हमसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे आगे के लिए। और सभी को मेरा तरुण जी नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड तरुण इवनिंग जी। सर। गुड इवनिंग। सॉरी सर, अभी मैं आउट ऑफ नमस्कार टाउन जा नमस्कार। रहा हूँ, तो इसी चक्कर में अभी लाइव नहीं आ पाया आज मैं। अभी 1-2 दिन कोई का नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, ऐसे ही रहेगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस अब ट्रेन एक का से चार इंतजार में है बस। हमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट करनी है। 1 तारीख से 4 तारीख तक हमें कुछ अलग से और डिटेल एनालिसिस देना है, एकदम या डिटेल, और प्लस फॉर्मेटिंग, प्लस खो खो के बारे में। बट हमको एक टाइम लिमिट में वो करना है, 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स, क्योंकि ऑडियंस होती है तो ऑडियंस को भी हमें ऑनर करना होता है। तो विल डू या इट इन दैट श्योर। वे। या वी विल डू। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन को बाइंड अप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू ऑडियंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल का डे ऑफ डे रहेगा, जैसा कि हमारे जो भी मेंबर्स है वो उन्होंने डिसाइड किया कि कल का डे ऑफ डे रहेगा। सो मिलते हैं अगले मैच के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। आप इंजॉय कीजिए, खो खो को प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए लेट्स खो। लेट्स गो। लेट्स लेट्स गो। गो।